کو پتا ہے مجھے کبھی بھی کسی سے ماں جیسی، لیکن آپ سے مجھے ماں جیسی بس، اس لیے آپ جب روتے ہیں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میں ہر نماز میں شہبانو جہاں نہیں تھی، اکیلی بور ہوتی رہتی ہے، میں نے سوچا ان کو کوئی کتاب پڑھ کے سنا دوں گی۔ سوری، آپ کی اجازت کے بغیر۔ آپ ٹھیک ہیں؟ جی۔ اگر کچھ ہوا تو آپ بتا سکتی ہیں۔ گھر بہت شدت سے یاد آ رہا ہے۔ بھروسہ کر کے ہوگی۔ وہ کون جس نے مدثر کا قتل کیا؟ آپ سے اس کی کیا دشمنی تھی؟ اس سے کوئی دشمنی نہیں تھی، میں تو اسے جانتی بھی نہیں تھی۔ مجھے نہیں پتا وہ کب اور کیسے ہمارے ڈھابے پہ آنے لگا۔ جب شروع ہوئی اس وقت میں نے سب کچھ ختم کر دی۔ تھوڑا حوصلہ رکھیں۔ فی الحال میں گلزمان کو کہتا ہوں کہ آپ کو ایک فون اور ایک سم دے دے تاکہ آپ اپنے ماما اور بھائی سے بات کر سکیں۔ میرا آپ سے وعدہ ہے، میں آپ کو آپ کے گھر تک ضرور پہنچاؤں گا۔ آنے والی اقساط میں کہانی پہلے سے بھی زیادہ سنسنی خیز ہونے والی ہے۔ ایک طرف رابعہ بی جان کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھتی ہے۔ وہ ان کی دوائیاں وقت پر دیتی ہے، ان کے لیے الگ سے کھانا بناتی ہے، ان کے ہاتھوں اور پاؤں کی مالش کرتی ہے اور ہر وقت ان کی خدمت میں لگی رہتی ہے۔ بی جان بھی دل میں محسوس کرنے لگتی ہیں کہ رابعہ صرف ایک اچھی لڑکی ہی نہیں بلکہ اس گھر کی خوشیوں کی وجہ بن چکی ہے۔ دوسری طرف سربلند بھی رابعہ کی عزت کرنے لگتا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ رابعہ نے صرف بی جان کا ہی نہیں بلکہ پورے گھر کا سکون واپس لوٹا دیا ہے۔ دونوں کے درمیان اعتماد بڑھنے لگتا ہے، لیکن وہ اپنے جذبات کسی پر ظاہر نہیں کرتے۔ ادھر رابعہ کے ماموں اور اس کا بھائی سخت پریشان ہیں۔ کئی دن گزر جاتے ہیں لیکن رابعہ کی کوئی کال نہیں آتی۔ وہ بار بار اس کا نمبر ملاتے ہیں مگر ہر بار فون بند ملتا ہے۔ ماموں روتے ہوئے کہتے ہیں، میری بچی نے ابھی زندگی کی خوشیاں بھی نہیں دیکھی تھیں۔ پہلے اس کا شوہر دنیا سے چلا گیا، اب نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی۔ اللہ کرے وہ محفوظ ہو۔ بھائی بھی بے بسی سے کہتا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں رابعہ مدثر کے دشمنوں کے ہاتھ تو نہیں لگ گئی۔ اسی دوران ترسم بھی مسلسل رابعہ کی تلاش میں لگا ہوا ہے۔ وہ اپنے آدمیوں کو حکم دیتا ہے کہ شہر کا ایک ایک کونا چھان مارو۔ وہ کہتا ہے، مجھے پورے شہر کی خبر چاہیے، ہر گلی، ہر بازار، ہر حویلی، ہر دروازے پر نظر رکھو۔ کوئی بھی نئی لڑکی نظر آئے تو فوراً مجھے اطلاع دو، وہ مجھ سے زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکتی۔ تورسم کے آدمی ہر جگہ نظر رکھتے ہیں مگر قسمت رابعہ کا ساتھ دیتی ہے اور وہ اس تک نہیں پہنچ پاتے۔ دوسری طرف لالا اپنی نئی سازش میں مصروف ہے۔ اسے شک ہو جاتا ہے کہ سرمالا دراصل سرمالا نہیں بلکہ رابعہ ہے۔ وہ اپنے خاص آدمیوں کو حکم دیتا ہے، اس لڑکی کی پوری حقیقت معلوم کرو، یہ کہاں سے آئی، اس کا ماضی کیا ہے اور یہ سربلند کے گھر تک کیسے پہنچی، مجھے اس کی ایک ایک خبر چاہیے۔ ادھر حویلی میں بھی سازشیں ختم نہیں ہوتی۔ چند نوکرانیاں رابعہ سے حسد کرنے لگتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں، تم بی جان کی خدمت کر کے اس گھر میں اپنی جگہ بنانا چاہتی ہوں۔ رابعہ اعتماد سے جواب دیتی ہے، میں خدمت دل سے کرتی ہوں، کسی مطلب کے لیے نہیں۔ بہتر ہے تم لوگ اپنے کام سے کام رکھو۔ اسی دوران ایک اور خطرناک سازش تیار ہوتی ہے۔ رانی شیولی سربلند کے لیے جوش لے کر آتی ہے، لیکن رابعہ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہے۔ وہ فوراً سربلند کو اشارہ کرتی ہے کہ جوش نہ پائے۔ سربلند رک جاتا ہے جبکہ رانی شیولی کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ اب رابعہ خاموشی سے ثبوت اکٹھے کرنے کا فیصلہ کرتی ہے تاکہ اصل مجرم سب کے سامنے بے نقاب ہو سکے۔ دوسری طرف لالا مسلسل ڈرامہ کر رہا ہے۔ وہ شیربانوں کی تصویریں دیکھ کر سب کے سامنے رونے کی اداکاری کرتا ہے تاکہ کسی کو اس پر شک نہ ہو، حالانکہ حقیقت صرف وہی جانتا ہے۔ اس کا اگلا منصوبہ سربلند کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹانا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا
राभा सरबलंद की जान बचा पाएगी? क्या लाला की हकीकत सबके सामने आएगी? क्या तोरसम राबा तक पहुंच जाएगा? और क्या राबा के मामों और भाई को आखिरकार इसकी खैरियत की खबर मिलेगी? उन तमाम सवालों के जवाब आने वाली अक़सात में मिलेंगे, जहां हर मोड़ पर एक नया राज, एक नई साजिश और एक बड़ा इंकिशाफ नाजरीन को हैरान करता है। राबिया को यकीन हो जाता है कि हवेली में कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो सरबलंद को नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो फैसला करती है कि अब वो सिर्फ बी जान की खिदमत ही नहीं करेगी, बल्कि हर लम्हा सरबलंद की हिफाजत भी करेगी। दूसरी तरफ लाला को मालूम हो जाता है कि उसकी पहली साजिश नाकाम हो चुकी है। वो गुस्से में अपने आदमियों से कहता है, राबिया जब तक इस घर में है, हमारा कोई मंसूबा कामयाब नहीं होगा। पहले उस लड़की की हकीकत मालूम करो, फिर उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा दो। इधर तोरसुम को भी एक नई इत्तला मिलती है कि राबा शायद इसी इलाके में कहीं मौजूद है। वो खुद हवेली के आसपास आकर नजर रखना शुरू कर देता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि राबिया उसी हवेली के अंदर मौजूद है। उसी दौरान बीजान की तबीयत अचानक दोबारा खराब हो जाती है। राबिया बरवक्त उन्हें दवा देती है और डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर सबके सामने कहता है, अगर राबा वक्त पर दवा न देती तो मामला बहुत संगीन हो सकता था। यह सुनकर बीजान जज्बाती हो जाती हैं और सबके सामने कहती हैं, आज से राबिया इस घर की जिम्मेदारी भी है और मेरी बेटी भी। जो उसके खिलाफ जाएगा वो मेरे खिलाफ जाएगा। बीजान की यह बात सुनकर लाला और रानी शिवली दोनों परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब राबिया को हवेली में एक मजबूत सहारा मिल चुका है। किस्त के आखिरी मंजर में एक नामालूम शख्स हवेली के दरवाजे पर खड़ा नजर आता है। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर होती है जिसमें राबिया का माजी छिपा होता है। वो आहिस्ता से कहता है, अब वक्त आ गया है कि सबको राबिया की असल हकीकत मालूम हो जाए। यहीं पर किस्त खत्म हो जाती है और अगली किस्त का प्रोमो एक बड़े इंकिशाफ का इशारा देता है। हवेली के दरवाजे पर खड़ा नामालूम शख्स अंदर आता है। वो खुद को राबिया के मरहूम शवहर आसिम मुदस्सर का पुराना दोस्त बताता है। उसके पास कुछ अहम दस्तावेजात और तस्वीर होती हैं जिनसे कई राज खुलने वाले होते हैं। लाला दौर से ये सब देख लेता है और फौरन अपने आदमियों को हुक्म देता है, उस आदमी पर नजर रखो, अगर उसने मुन्ना खोल दिया तो हमारा सारा खेल खत्म हो जाएगा। इधर सरबलंद को महसूस होने लगता है कि राबिया इससे कुछ छिपा रही है। वो नरमी से पूछता है, राबिया, तुम्हारी आंखों में एक ऐसा दर्द है जो तुम किसी को बताना नहीं चाहते। आखिर हकीकत क्या है? राबिया खामोश रहती है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इसी रात कोई शख्स हवेली में चोरी छिपे दाखिल होता है और बीजान के कमरे की तरफ बढ़ता है। राबिया की आंख खुल जाती है। वो फौरन उसके पीछे भागती है, मगर वो शख्स अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो जाता है। फरार होते वक्त उसके हाथ से एक अंगूठी गिर जाती है। राबिया वो अंगूठी उठा लेती है और समझ जाती है कि ये किसी बड़े राज की पहली कड़ी है। दूसरी तरफ तोरसुम को खबर मिलती है कि जिस लड़की को वो तलाश कर रहा है वो शायद उसी हवेली में मौजूद है। वो फैसला करता है कि अब वो खुद हवेली तक पहुंचेगा। किस्त के आखिरी मंजर में तोरसुम हवेली के मरकजी दरवाजे के सामने खड़ा नजर आता है, जबकि अंदर राबिया को अभी तक मालूम नहीं कि खतरा इसके दरवाजे तक पहुंच चुका है। अगली किस्त में राबिया, सरबलंद और लाला आमने सामने आ सकते हैं और कहानी एक बड़े इंकिशाफ की तरफ बढ़ सकती है। तोरसुम हवेली में दाखिल होने की कोशिश करता है, लेकिन सिक्योरिटी उसे रोक देती है। वो अपनी शिनाख्त छिपाकर वापस चला जाता है, मगर दिल ही दिल में फैसला कर लेता है कि वो दोबारा जरूर आएगा। उधर लाला को पता चल जाता है कि तोरसुम भी राबिया को ढूंढ रहा है। वो सोचता है, अगर तोरसुम पहले राबिया तक पहुंच गया तो मेरा सारा मंसूबा नाकाम हो जाएगा। अब मुझे जल्दी कोई बड़ी चाल चलनी होगी। इसी दौरान बीजान सबके सामने एक अहम फैसला सुनाती हैं। आज से राबिया इस घर की सिर्फ मेहमान नहीं, बल्कि इस घर की जिम्मेदारी है। उसकी इज्जत मेरी इज्जत है। ये सुनकर रानी शिवली और लाला दोनों के चेहरों का रंग बदल जाता है। रात को लाला चुपके से राबिया के कमरे में दाखिल होकर इसके सामान की तलाशी लेता है। उसे एक पुरानी तस्वीर और चंद कागजात मिलते हैं, जिनसे उसे यकीन हो जाता है कि राबा का माजी वैसा नहीं जैसा वो सबको बता रही है। दूसरी तरफ सरबलंद राबुआ को परेशान देखकर कहता है, मुझे नहीं मालूम तुम किस मुश्किल से गुजर रही हो, लेकिन एक बात याद रखो, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। राबिया ये सुनकर खामोश हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर उसने अपनी असल हकीकत बता दी तो सरबलंद भी खतरे में आ सकता है।
किस्त के आखिरी मंजर में लाला मुस्कुराते हुए कहता है, अब वक्त आ गया है कि राबिया का सबसे बड़ा राज सबके सामने ले आऊं। कैमरा राबिया के चेहरे पर आता है, जो इस खतरे से अभी तक बेखबर होती है, और किस्त एक जबरदस्त सस्पेंस पर खत्म हो जाती है। लाला अगले दिन सबके सामने राबिया की बेइज्जती करने की कोशिश करता है। वो कहता है, उस लड़की की हकीकत जानने का वक्त आ गया है। ये वो नहीं जो खुद को जाहिर करती है। ये सुनकर पूरा घर हैरान रह जाता है। राबिया खामोश खड़ी रहती है, जबकि सरबलंद फौरन लाला को टोक देता है, अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो सामने लाओ, वरना राबिया पर एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। लाला चंद तस्वीरें और कुछ अधूरे कागजात दिखाता है, मगर उनसे कोई हकीकत साबित नहीं होती। बीजान सख्त लहजे में कहती हैं, किसी की इज्जत पर इल्जाम लगाना बहुत आसान है, मगर सबूत के बगैर में एक लफ्ज भी नहीं मानूंगी। लाला गुस्से में वहां से चला जाता है, लेकिन दिल ही दिल में कसम खाता है कि अगली बार ऐसा सबूत लाएगा जिससे सब राबिया के खिलाफ हो जाएं। उसी रात राबिया को एक नामालूम नंबर से कॉल आती है। अगर अपनी और सरबलंद की जान बचानी है तो कल शाम पुरानी हवेली में अकेली आना, वरना बहुत देर हो जाएगी। राबिया ये बात किसी को नहीं बताती और खामोशी से अगले दिन वहां जाने का फैसला कर लेती है, लेकिन उसे मालूम नहीं होता कि सरबलंद ने उसकी परेशानी महसूस कर ली है। वो चपके से उसका पीछा करने का फैसला करता है। किस्त के आखिरी मंजर में राबिया पुरानी हवेली में पहुंचती है। अचानक चारों तरफ से चंद नकाबपोश लोग उसे घेर लेते हैं। इसी लम्हे पीछे से एक आवाज आती है, राबिया घबराना मत, मैं आ गया हूं। कैमरा सरबलंद पर आकर रख जाता है और दोनों का सामना एक नए खतरे से होने वाला होता है। यहीं पर किस्त खत्म हो जाती है और अगली किस्त में एक जबरदस्त एक्शन और बड़े राज के इंकिशाफ का इशारा दिया जाता है। पुरानी हवेली में नकाब पोश अफराद राबिया को घेर लेते हैं, लेकिन इसी लम्हे सरबलंद वहां पहुंच जाता है। वो राबिया को अपने पीछे कर लेता है और कहता है, जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। नकाब पोश अफराद वहां से भाग जाते हैं, मगर जाते जाते एक लिफाफा गिरा देते हैं। सरबलंद लिफाफा खोलता है तो इसमें चंद तस्वीर और एक खत होता है, जिसमें लिखा होता है, अगर सच जानना है तो लाला पर नजर रखो, तुम्हारा असल दुश्मन वही है। इधर लाला को खबर मिलती है कि उसकी चाल एक बार फिर नाकाम हो गई है। वो शदीद गुस्से में आ जाता है और रानी शेवली से कहता है, अब वक्त आ गया है कि आखिरी वार क्या जाए। इस बार ना राबिया बचेगी न सरबलंद। दूसरी तरफ बीजान राबिया की परेशानी महसूस कर लेती हैं। वो उसे अपने पास बुलाकर कहती हैं, बेटी तुम कुछ छिपा रही हो, अगर कोई मुश्किल है तो मुझे बताओ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। राबिया की आंखों से आंसू निकल आते हैं, लेकिन वो अभी भी हकीकत नहीं बता पाती। इसी दौरान तुरसुम के आदमियों को खबर मिलती है कि राबिया वाकई सरबलंद की हवेली में मौजूद है। तुरसुम मुस्कुराकर कहता है, आखिरकार तुम मिल ही गई राबिया, अब देखते हैं तुम्हें कौन बचाता है। किस्त के आखिरी मंजर में हवेली के बाहर कई गाड़ियां आकर रखती हैं। मुसल्लह अफराद आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ बढ़ते हैं, जबकि घर के अंदर किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि एक बहुत बड़ा खतरा दरवाजे तक पहुंच चुका है। अगली किस्त में हवेली पर हमला, राबिया की हकीकत के मजीद इशारे और सरबलंद का एक बड़ा फैसला कहानी का रख बदल सकता है। जंजीरें अगली किस्त एम्फेन स्टाइल। हवेली के बाहर गाड़ियां रखने के बाद पूरे घर में खौफ की फजा फैल जाती है। सिक्योरिटी फौरन सरबलंद को इत्तला देती है कि कुछ मशकूक लोग हवेली के अर्दगर्द मौजूद हैं। सरबलंद फौरन सबको हदायत देता है, बीजान को उनके कमरे में ले जाएं और कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा। राबिया भी बीजान को संभाल कर महफूज जगह पर ले जाती है, मगर उसके दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा होता है कि यह सब उसकी वजह से हो रहा है। इधर लाला खामोशी से मुस्कुरा रहा होता है। वो दिल ही दिल में कहता है, अब खेल अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। अब देखते हैं सरबलंद अपने घर को बचाता है या राबिया को। उसी दौरान एक नामालूम शख्स हवेली के गेट पर आता है और कहता है कि उसके पास राबिया के माजी से मुतालिक बहुत अहम खबर है। सरबलंद उसे अंदर बुलवा लेता है। वो शख्स एक फाइल मेज पर रखकर कहता है, अगर आप राबिया पर यकीन करते हैं तो पहले ये हकीकत जान लें, कोई उसके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश कर रहा है। सरबलंद जैसे ही फाइल खोलने लगता है, अचानक घर की बिजली चली जाती है। पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। इसी अंधेरे का फायदा उठाकर एक नकाबपोश शख्स फाइल उठाकर भाग जाता है। जब रोशनियां वापस आती हैं तो सब हैरान रह जाते हैं। फाइल गायब हो चुकी होती है और सरबलंद समझ जाता है कि इस फाइल में ऐसा राज था जिसे कोई हर कीमत पर छिपाना चाहता है।
किस्त का इख्तिताम इस मंजर पर होता है कि राबिया खिड़की से बाहर देखती है और दौर खड़ा एक प्रसरार शख्स उसे देखकर मुस्कुराता है, फिर अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। क्या वो लाला का आदमी है या कोई ऐसा शख्स जो राबिया की मदद करना चाहता है? इस राज से अगली किस्त में पर्दा उठेगा। अगली सुबह पूरे घर में रात के वाकये की बातें हो रही होती हैं। सरबलन सिक्योरिटी के तमाम एहलकारों को बुलाकर सख्त लहजे में कहता है, आज से हवेली में आने और जाने वाले हर शख्स पर नजर रखी जाएगी। जब तक हकीकत सामने नहीं आती, कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। दूसरी तरफ राबिया परेशान होती है कि उसकी वजह से सब लोग खतरे में आ गए और हैं। वो चुपके से फैसला करती है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद ही हवेली छोड़ देगी ताकि किसी और की जान खतरे में ना पड़े। बीजान राबिया के चेहरे से उसकी परेशानी पढ़ लेती हैं। वो उसका हाथ पकड़कर कहती हैं, बेटी, ये घर अब तुम्हारा भी है। मुश्किल वक्त में अपने घर वाले साथ छोड़कर नहीं जाते। राबिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वो बीजान को गले लगा लेती है। इधर लाला अपने कमरे में बैठा एक नई साजिश तैयार कर रहा होता है। वो अपने आदमी से कहता है, अगर राबिया की हकीकत नहीं खुल रही तो हमें ऐसा मौका पैदा करना होगा कि सब लोग खुद उस पर शक करने लगें। इसी दौरान तोड़सम को खबर मिलती है कि हवेली की सिक्योरिटी पहले से ज्यादा सख्त हो गई है। वो गुस्से में कहता है, ठीक है, अब हम सामने से नहीं अंदर से वार करेंगे। शाम के वक्त हवेली में एक नया मुलाजिम काम पर आता है। किसी को मालूम नहीं होता कि वो दरअसल तोड़सम का आदमी है, जिसे सिर्फ एक मकसद के लिए भेजा गया है, राबा पर नजर रखना। किस्त के आखिरी मंजर में वो नया मुलाजिम दौर से राबा को देखकर आहिस्ता से फोन करता है और कहता है, जी सर, मैं हवेली के अंदर पहुंच गया हूं। राबिया यही है, अब आपका अगला हुक्म किया है। फोन के दूसरी तरफ खामोशी के बाद सिर्फ एक जुमला सुनाई देता है, वक्त आ गया है, खेल का आखिरी मरहला शुरू करो। यहीं पर किस्त खत्म हो जाती है और अगली किस्त में हवेली के अंदर मौजूद गुदार की हकीकत सामने आने के इशारे मिलते हैं।